Starting the lecture, let me ask you very frankly, and I want answer very frankly and very honestly, that everything what we have seen in last two lectures, is there any particular point or is there any particular concept that is not completely understood by you? ठीक है, ऐसा ऐसा कोई पॉइंट है क्या, या फिर ऐसी कोई कंसेप्ट है क्या कि जो आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आई है, या फिर आपको कोई कंफ्यूजन है उसके बारे में? तो अगर ऐसा है तो ऑफकोर्स आप वी कैन डिस्कस। आप अभी मुझसे बात कर सकते हो, या फिर इन बिटवीन आप अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो वो आपका डाउट वगैरह जो भी है। Or even that my phone number is with Savant sir, and even with Arya ma'am. So if you have any doubt, maybe regarding general awareness, you can always reach out to me, right? So I will not be sharing my number here, okay? But you can get if you want to have the uh, one-on-one discussion regarding general awareness, of course, then you can always ask my phone number, and that is with the Savan sir and Arya ma'am, right? Okay, so yes, before much, so without wasting much time, I will be starting with the concepts, right? Okay, so in last lecture we see the basically types of inflation and all, the impact of inflation, right? So now we will see the consequences of inflation, or the causes of inflation, not consequences but causes of inflation. कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, ये जो हमने इन्फ्लेशन देखा, इन्फ्लेशन अलग अलग टाइप का होता है, जैसे कि स्टैगफ्लेशन वगैरह जो भी है, वो हमने टाइप्स देखे, और ठीक है। नाउ वी विल सी द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। देयर आर टू मेन कॉजेस, उसको हम लोग कहेंगे कॉस्ट पुश। So cost push is nothing but that is pushing the cost or increasing the product cost. ठीक है, increase in product cost. I mean demand is same, ठीक है, product cost demand is same. Suppose there is a X item which is of 100 rupees, and that is demanded by every year 10,000, so 1,000 people, ठीक है, in last year 2021. But in 2022 the cost of that product is gone 105, but the demand is same, ठीक है। The so this 100 and 105, that is 5% inflation is there, but the demand remains unchanged, ठीक है। सो ये क्यों होता है, कॉस्ट क्यों बढ़ता है, ठीक है। तो इसे ये कॉस्ट बढ़ने के अलग अलग कारण होते हैं, और इसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या फिर सप्लाई साइड इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। कॉस्ट पुश और सप्लाई साइड, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। हम देखते हैं कि कॉस्ट बढ़ने के क्या क्या कारण है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ द इंक्रीज इन द कॉस्ट, और द अपवर्ड ट्रेंड ऑफ द कॉस्ट इंक्रीज, राइट। फर्स्ट, natural calamity. So natural calamity like earthquake, and so for example flood will be there, like earthquake might be there, okay. So that hampers the production. So natural calamity which hampers the production, or the actually production quantity. So so in order to adjust the loss, or in order to avoid the loss in the profit or decline in the profit, what the manufacturer does, they increase the cost, ठीक है।
तो प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलेमिटी लाइक अर्थक्वेक है, फ्लड है, एनी नेचुरल कैलेमिटी, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल कोविड आल्सो. सो इन ऑर्डर टू एडजस्ट द loss, or in order sorry, not loss, but in order to reduce the in order to avoid the loss of profit, the producers or the manufacturers increase the कॉस्ट. ठीक है, ये हम लोग अभी देख रहे हैं कि हर हर चीजों की कीमतें जो है हम लोग अभी भी देख रहे हैं, जो द प्राइसेस ऑफ वेरियस थिंग्स आर नाउ इंक्रीज्ड बिकॉज. सो जो लॉस हुआ था नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, उसे कवर अप करने के लिए या फिर उसको अवॉइड करने के लिए ये होता है. देन अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. So what is it, what how does it affect the basically cost? Suppose there is a bad road, ठीक है, सो वहाँ पे बहुत रोड खराब है और पॉइंट ए टू बी मुझे जाना है, पॉइंट ए टू बी. ठीक है, अगर वो रोड अच्छा है तो मुझे सिर्फ 10 घंटे लगेंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ द बैड कंडीशन ऑफ द रोड आई रिक्वायर 12 आवर्स. ठीक है, तो 10 घंटे, ये जो एडिशनल 2 घंटे हैं वो मेरा क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया. क्योंकि ये जो एडिशनल 2 घंटे का जो भी पेट्रोल का खर्चा होगा, जो भी वो ड्राइवर का खर्चा होगा, और जो भी मैन आवर लगेगा मुझे एडिशनल, तो वो सब क्या आ जाएगा, मेरा जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, मेरा जो प्रोडक्ट है उसके फाइनल कॉस्ट में जाएगा. ठीक है, तो इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब, फॉर एग्जांपल मैंने रोड की बताया, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो कि अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से क्या हो सकता है. नेक्स्ट इज अंडर डेवलप्ड इंडस्ट्री. अब अंडर डेवलप्ड इंडस्ट्री मीन्स व्हाट, कि सपोज देयर इज अ technology which is used for particular product which is now not which is now very old or obsolete. ठीक है, but the new technology is not much known, or either it is very costly new technology, or not known to say for example Indian manufacturer, so they continue to manufacture their particular product with the old technologies. और सो यहाँ पे इसके वजह से क्या होता है, अंडर अंडर डेवलप इंडस्ट्री मतलब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कम होने की वजह से पर्टिकुलरली कॉस्ट कटिंग जो होना चाहिए, जो नई टेक्नोलॉजीज का जो नई नई टेक्निक्स है वो क्या करती है, कॉस्ट कटिंग करती है, आपका कॉस्ट बचाती है. तो इसकी वजह से ये होता नहीं है, क्योंकि हमारी जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां जो है वो ये अफोर्ड नहीं कर पाती जो बड़ी नई नई टेक्नोलॉजी से वो, और वहाँ पे उनका जो दे दे मैन्युफैक्चर देयर पर्टिकुलर प्रोडक्ट विद द ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, और नॉट ट्रेडिशनल बट ओल्ड टेक्नोलॉजी. सो इसके वजह से क्या होता है, कॉस्ट जो प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है. अनदर रीजन फॉर दिस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन is less output. So for any other reason, if there is a less output, ठीक है, तो आउटपुट लेस होने के वजह से क्या होगा, सप्लाई लेस होगा, और सप्लाई लेस होने के कारण लॉस जो होगा वो हो सकता है. ठीक है, तो ऐसे ना हो, कोई भी रीजन हो, तो अगर किसी कारणवश आउटपुट कम है, या फिर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से है, या फिर कोई कोई भी रीजन है आउटपुट कम होने के वजह आउटपुट कम होने का, तो उससे क्या होता है कि प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ता है. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ पर यूनिट विल इंक्रीज. अगर आउटपुट कम है तो पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट विल इंक्रीज. एंड लास्ट रीजन फॉर दिस इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. लाइक सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के वजह से अगर कोई मतलब प्लांट वगैरह है वो अगर बंद है, तो क्या होगा, सेम, the effect will be same. Right, so these are the reasons for cost push inflation और increase और supply side inflation. दूसरे टाइप का इन्फ्लेशन जो होता है, दूसरे टाइप का इन्फ्लेशन होता है डिमांड पुल. डिमांड पुल.
और इंक्रीज इन डिमांड, मतलब इसके वजह से डिमांड में बढ़ोतरी आती है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, ठीक है। और डिमांड में राइज आने के कारण क्या होता है, जो कॉस्ट है वो बढ़ती है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो लोग जो है वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए अपनी जो कीमतें हैं वो उसको बढ़ा देंगे, ठीक है। तो डिमांड क्यों बढ़ती है, सो देर आर फ्यू रीजंस टू इंक्रीज इन द डिमांड। सो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है कि इंक्रीज इन पर्सनल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कैपेसिटी मतलब जो लोगों की खर्च करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। अगर खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ गई तो क्या होगा, डिमांड भी बढ़ जाएगी, और अगर डिमांड बढ़ गई तो क्या होगा, कॉस्ट भी हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये क्या हो सकता है, मतलब आईटी आप एग्जांपल ले सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो रिवॉल्यूशन हुआ भारत में, उसके वजह से क्या हो गया, लोगों की सैलरीज बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो लोगों की सैलरीज बढ़ने के कारण क्या हुआ, लोगों का जो पर्सनल एक्सपेंडिचर का कैपेसिटी था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसके लिए जो हाई एंड प्रोडक्ट्स है, जैसे कि वॉच है, कार है, मतलब मोबाइल फोन वगैरह है, उसकी कीमतें जो है वो अभी बढ़ने लगी। मतलब पहले कार की वगैरह कीमत कम आती थी, लेकिन अब वो ज्यादा है क्योंकि डिमांड ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट रीजन इज इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगा मतलब क्या करेगा, सपोज फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर मतलब, सपोज गवर्नमेंट ने लोगों के जो एम्प्लॉय है, बैंक के एम्प्लॉय है या फिर सिविल सर्विसेज के एम्प्लॉय है, उनके क्या कर दिए, उनकी सैलरी बढ़ा दी, ठीक है। तो ये तो गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट जो सैलरी बढ़ाता है उनके उसके एम्प्लॉयज की, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की, तो क्या होता है, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ता है, लेकिन लोगों की सैलरी बढ़ती है। जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है, जो भारत में बहुत ज्यादा है अभी भी, तो उनकी सैलरी बढ़ती है। तो उनकी सैलरी बढ़ने के कारण क्या होगा, उनका एक्सपेंडिचर का कैपेसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग क्या करते हैं कि पीपल इनकम, ये भी बढ़ेगा। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर मतलब क्या है, लोगों का इनकम। पीपल इनकम, लोगों का इनकम बढ़ेगा तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो लोगों जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा एक रीजन है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट का मतलब क्या है, ठीक है। डेफिसिट मतलब कमतरता, ठीक है। मतलब अगर जो मेरा एक्सपेंडिचर है, जो मेरा खर्चा है, वो अगर मेरे इनकम से कम है, माई एक्सपेंडिचर इज लेस देन माई इनकम, सॉरी, माई एक्सपेंडिचर इज मोर देन माई इनकम, माई एक्सपेंडिचर इज मोर देन माई इनकम, देन क्या होगा, मेरे पास कटौती होगी, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में हम अगर देखें, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट की इनकम से कम है तो उसे कहते हैं डेफिसिट, ठीक है। आगे हम लोग देखने वाले हैं अलग अलग टाइप के डेफिसिट होते हैं आज के लेक्चर में, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो गवर्नमेंट का डेफिसिट, तो अब डेफिसिट है मतलब घाटा है, नुकसान है गवर्नमेंट को, तो वो फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, ज्यादातर नए न्यू करेंसी प्रिंट करता है, न्यू करेंसी प्रिंट करेगा, या फिर लोन लेगा, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब का इम्पैक्ट क्या होता है, नई करेंसी अगर गवर्नमेंट ने प्रिंट की है, तो वो क्या होगा, गवर्नमेंट जो नई करेंसी प्रिंट करेगा, अपना जो खर्चा है वो जो अपना जो डेफिसिट है, लॉस है, उसको भरने के लिए, तो जो करेंसी है वो अल्टीमेटली कहाँ पे जाएगी, लोगों के बच जाएगी। तो लोगों का क्या वो बनेगा, लो पीपल्स इनकम विल इंक्राइज, ठीक है। लोगों का इनकम बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा, अगर करेंसी ज्यादा है मार्केट में, तो मनी का जो वैल्यू होगा, मतलब वो कम हो जाएगा, और डिमांड बढ़ेगी, और मनी वैल्यू विल डिक्रीज। मतलब एक चीज अगर 100 रुपए में पहले मिलती थी, तो अब 100 रुपए की वैल्यू कम है, ठीक है। मतलब वो कीमत वो जो चीज है, ठीक है, वो उसमें क्वालिटी में कुछ डिफरेंस आया नहीं है, ठीक है, वो वैसी की वैसी है, लेकिन मनी का वैल्यू कम होने की वजह से
अब उसकी क्या हो गई है, डिमांड भी बढ़ गई है, लेकिन उसका वैल्यू कम होने की वजह से अब क्या है, उसका कॉस्ट मतलब डिमांड बढ़ गया है और इसके लिए वो इन्फ्लेशन हो गया है। ठीक है। उसके बाद जैसे कि देखिए उसके साथ साथ डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए गवर्नमेंट क्या करेगा, और जो लोन लेगा, ठीक है, क्रेडिट क्रिएगा, तो लोन को हम लोग कहेंगे क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन मतलब लोगों के पास ज्यादा एक्सपेंडिबल जो खर्चा है वो बढ़ेगा। ठीक है, एक्सपेंडिबल इनकम जो, या फिर उसको हम लोग कहेंगे जो डिस्पोजेबल इनकम, उसको कहेंगे डिस्पोजेबल इनकम। मतलब क्या होगा, लोन सस्ता हो जाएगा। ठीक है, लोन सस्ता होने के कारण आपको इजी लोन अवेलेबल है, तो आपको कार वगैरह ये सब जो हाई एंड आइटम्स है, मोबाइल है, कार है, घर है, ये सब जो आइटम्स है वो ये सब जो चीजें हैं वो क्या होंगे, वो अ, उसके लिए इजीली लोन अवेलेबल हो जाएगा। तो उसके लिए अगर इजीली लोन अवेलेबल हो रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो अगर डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। ठीक है, आप ये एग्जांपल आप घर जो घरों की जो कीमतें हैं, प्राइसेस ऑफ हाउसेस जो इतने ज्यादा बढ़ रही है, 1.5 करोड़, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ के घर है। ठीक है, और एम्यूनिटीज देखे पूरे सिटीज की वगैरह, तो वो इतनी है नहीं, लेकिन घरों की कीमतें बढ़ रही है, क्योंकि पहले क्या होता था, ये जो डिस्पोजेबल इनकम है क्रेडिट क्रिएशन की वजह से वो बढ़ जाता है, तो लोग क्या करते हैं, खुद का घर वगैरह लेने की सोचते हैं, और वो हाउस लोन वगैरह भी सस्ता हो जाता है, इसके उसका डिमांड भी बढ़ता है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गया तो डिमांड भी बढ़ गई। ठीक है। उसके बाद देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो रीजन है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब भारत में अगर कोई फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, मतलब ये एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई जो है वो अगर कर रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो क्या होगा, वो सिर्फ पैसे नहीं लाएगी, वो टेक्नोलॉजी लाएगी, नई कंपनी एस्टेब्लिश होगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट डेवलप हो जाएगा, तो लोगों के पास क्या होगा, लोगों को जॉब मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के कारण फिर से क्या होगा, इनकम बढ़ेगा, फिर से क्या होगा, इनकम बढ़ने के बाद डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, और डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, लास्ट का और इम्पोर्टेंट रीजन है, ये दोनों, ये जो रीजन मैं बताने जा रहा हूँ ये दोनों जगह पे लगता है, यानी कॉस्ट पुश और कॉस्ट डिमांड पुल में, ये है एक्सपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंगो के एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। देखिए मैंगो जो है हमारा हापुस आम, इसकी जो डिमांड है वो फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, हमारे इधर की भी कीमतें जो है वो अब बढ़ रही है। ठीक है, पहले वो 100-200 रुपए डजन में आता था, 100 रुपए डजन, 200 रुपए डजन, अब उसकी ही कीमत 700, 800, 900 रुपया इतनी ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, सो एक्सपोर्ट की वजह से क्या होता है, इधर का भी डिमांड बढ़ता है, लोकल डिमांड भी बढ़ता है, लोकल डिमांड बढ़ने के कारण उसका प्राइस भी बढ़ता है, लोकल डिमांड भी बढ़ेगा, लोकल डिमांड बढ़ने के कारण उसका प्राइस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ है जो इन्फ्लेशन को क्या करते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके। अब ये जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ देता है, जो कॉमन पीपल है, हम आप जैसे मेरे जैसे, उस उसको क्या होता है, फिर लोगों को तकलीफ, लोगों की तकलीफें बढ़ जाती है। तो लोगों की तकलीफें कम हो, इन्फ्लेशन कम हो, तो इसके लिए सरकार क्या करती है, तो इन्फ्लेशन कम करना, टू रेगुलेट द इन्फ्लेशन और टू मेंटेन द इन्फ्लेशन, ये किसकी जिम्मेदारी है, टू मेंटेन द इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, मेंटेन द इन्फ्लेशन अंडर
कंट्रोल, ये किसकी जिम्मेदारी है? आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और वो इन्फ्लेशन जो है वो किस रेंज में आरबीआई को रखना है? दैट इज 4%, मतलब 4% इन्फ्लेशन रखना है, प्लस माइनस ये जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस लिमिट है +-2%, मतलब अगर देखें टोटल देखें 2% टू 6%। ठीक है, अभी देखिए इन्फ्लेशन 6 से ऊपर कंटिन्यूसली जा रहा है, तो आरबीआई को क्या करना पड़ता है? आरबीआई को गवर्नमेंट को रीजन देने पड़ते हैं कि इन्फ्लेशन क्यों जा रहा है, क्यों बढ़ रहा है, और आरबीआई को करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ते हैं। इसके लिए आरबीआई ने लास्ट हफ्ते में क्या किया? रेपो रेट जो है वो कम कर दिया। अब ये रेपो रेट क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, रेपो रेट जो है वो बढ़ा दिया, सॉरी बढ़ा, कम कम नहीं किया, बढ़ा दिया। ठीक है, अब रेपो रेट वगैरह क्या है ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि आरबीआई का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल रखना। और ये जो पॉलिसी है, जिस पॉलिसी के थ्रू आरबीआई क्या करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखती है, उस पॉलिसी को कहते हैं मॉनिटरी पॉलिसी। ठीक है, आरबीआई को उस पॉलिसी को क्या कहते हैं? मॉनिटरी पॉलिसी या फिर चलन विषयक धोरण पॉलिसी, या फिर चलन विषयक धोरण। ठीक है, ये है आरबीआई का सबसे इंपॉर्टेंट काम। ठीक है, अब चलन विषयक धोरण है तो मैंने बताया कि टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन आरबीआई जो पॉलिसीज लाती है उसे कहते हैं चलन विषय मॉनेटरी पॉलिसी या फिर चलन विषयक धोरण। तो ये किस टूल्स से होता है? ठीक है, और किस तरीके से होता है? तो हम लोग देखते हैं कि टूल्स टू इम्प्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी, टूल्स टू इम्प्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो उसमें भी दो तरीके होते हैं। एक होते हैं क्वांटिटेटिव, यानी जो क्वांटिटी पे अफेक्ट करते हैं, मतलब जो मनी का क्वांटिटी है मार्केट में, जो एक्चुअली करेंसी है मार्केट में, उसको अफेक्ट करते हैं, वो होते हैं क्वांटिटेटिव। अब उसमें भी दो तरीके होते हैं, क्वांटिटेटिव में भी दो तरीके होते हैं। एक होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट मेजर्स और डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स में फिर से दो टाइप होते हैं या फिर दो टूल्स होते हैं। वो पहला होता है CRR या फिर कैपिटल रिजर्व रेशो, कैपिटल रिजर्व रेशो। अब ये जो कैपिटल रिजर्व रेशो, ये क्या होता है? कैपिटल रिजर्व रेशो यानी CRR या फिर कैपिटल रिजर्व रेशो क्या होता है कि बैंक जो आरबीआई के कंट्रोल में है, ठीक है, जो आरबीआई के बैंक कंट्रोल में है, उस बैंक को अब ठीक है, उस बैंक को कुछ अमाउंट, उसके पास की कुछ अमाउंट क्या है, उसके पास की कुछ अमाउंट आरबीआई में रखनी होती है। ठीक है, अगर डेफिनेशन के वाइज देखें तो इसकी डेफिनेशन हम लोग ऐसे कह सकते हैं, सो बैंक्स हैव टू डिपॉजिट banks have to the amount deposit the amount in percentage, in percentage of net demand and time liability, net demand and time liability with RBI in terms of currency, okay, or in terms of cash, in terms of cash or currency। ठीक है, एट प्रेजेंट जो CRR है
वो है 4%। ठीक है, पहले तो हम लोग देखते हैं कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का मतलब क्या है। देखिए, कोई भी बैंक जो है, बैंक जो है उसका बिजनेस का मॉडल ये होता है कि, ठीक है, ये बैंक है, ये है बैंक, ये है पर्सन ए और पर्सन बी। ये अपने कमाए हुए कुछ पैसे बैंक में इन्वेस्ट करता है या फिर बैंक में रखता है। ठीक है, अब बैंक जो है वही पैसे एक्स और वाई को क्या करती है, लोन में देती है। ठीक है, सपोज एक्स को बैंक ने दिए 50,000 और वाई को बैंक ने दिए 30,000। ठीक है, लेकिन वापस करते वक्त बैंक को इनको क्या करना है, 50,000 प्लस इंटरेस्ट ये भी देना है, और 50 के ये भी, सपोज इसने भी 50 के ही लिए है, 50 के प्लस इंटरेस्ट ये भी इसको वापस करना है। तो ये इंटरेस्ट होता है परसेंटेज में, चलो मान लेते हैं ये 10% है, 10%। ठीक है, अब बैंक जो है, ये अगर ए और बी के जो इन्वेस्टमेंट है उसने, अब बैंक को क्या है, ए और बी के इन्वेस्टमेंट, ए और बी को भी पैसे वापस देने हैं कभी ना कभी तो। ठीक है, तो वो सपोज इसने रखे हैं 80,000 और इसने रखे हैं 20,000। ठीक है, तो बैंक इसको वापस देते वक्त कितना देगी, 80 प्लस 80 के प्लस इंटरेस्ट, और इसको भी 20 के प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये होता है 7%। ठीक है, 7%। ठीक है, तो ये परसेंटेज का जो डिफरेंस होगा 3%, ये क्या होगा, बैंक का प्रॉफिट। मतलब ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंक्स। ठीक है, अब देखते हैं कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या है। डिमांड लायबिलिटी मतलब, पहले देखते हैं कि लायबिलिटी का मतलब क्या है। अब लायबिलिटी जो है, अगर ए जो पर्सन है अपने 80,000 रुपये बैंक में रख रहा है, ठीक है, सपोज ए जो पर्सन है अपने 80,000 रुपये कहाँ पे रख रहा है, बैंक में रख रहा है, तो बैंक को क्या करना है, इसको ये 80,000 रुपये वापस भी देने हैं। तो बैंक के कंटेक्स में हम लोग देखें तो ये बैंक की क्या होती है, लायबिलिटी होती है। ठीक है, अगर ए के कंटेक्स में देखें तो ये 80,000 क्या है, इसकी एसेट है, बराबर, क्योंकि इसको एसेट पे क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ रिटर्न्स मिलेगा। अब बैंक की लायबिलिटी क्यों है, इस पे, इसके लिए उसको कुछ ना कुछ क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन बैंक, तो ये जो फिर क्या होता है, बैंक जो है ये 50,000 रुपये जो है वो किसके देती है, एक्स को देती है। ठीक है, अब एक्स के हिसाब से देखें तो ये जो 50,000 है ये क्या है, लायबिलिटी है, क्योंकि उसको कभी ना कभी तो वो वापस देने हैं बैंक को इंटरेस्ट के साथ। लेकिन बैंक के कंटेक्स्ट में देखें, ये 50,000 जो है वो है एसेट है, क्योंकि बैंक को क्या मिलेगा, इसके साथ इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका जो टोटल मतलब बैंक की जितने भी एसेट है और बैंक की जितनी भी लायबिलिटी है उसका जो नेट होगा वो उसे कहेंगे नेट लायबिलिटी। नेट लायबिलिटी मतलब बैंक की जितनी भी एसेट है और बैंक की जितनी भी लायबिलिटी है उसको हम लोग कहेंगे नेट लायबिलिटी। ठीक है, अब डिमांड एंड टाइम मतलब, सपोज डिमांड पहले देखते हैं, डिमांड लायबिलिटी। ठीक है, आपके नोट्स में वैसे तो है, जो नोट्स आपको मिलने वाले हैं, लेकिन अगर यहाँ पे मतलब डाउट नहीं रहे, क्योंकि ये समझना चाहिए सीआरआर, इसके लिए मैं यहाँ पे फिर से वो ले रहा हूँ। डिमांड लायबिलिटी मतलब क्या है, सपोज मैंने एक अकाउंट ओपन किया। ठीक है, सी पर्सन ने एक सेविंग अकाउंट बैंक में ओपन किया है। ठीक है, ठीक है, सेविंग अकाउंट में उसके पास अभी सपोज मान लेते हैं 15,000 रुपए है। वो जाता है एटीएम में, और एटीएम में पिन वगैरह डाल के कितना डिमांड करता है, 5,000 रुपए की डिमांड करता है।
तुरंत जैसे ही डिमांड करता है उसके अकाउंट, उसके पास क्या आ जाते हैं, 5,000 रुपये आ जाते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे डिमांड लायबिलिटी। डिमांड है, ठीक है, डिमांड करते ही मिल जाते हैं तुरंत। दूसरे होते हैं टाइम, ठीक है, इसमें दो टाइप होते हैं, एक होते हैं फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। सपोज मैं कुछ मान लेते हैं कि मैं 20,000 रुपये, 20K रुपये 6 मंथ्स के लिए मैं रख रहा हूँ, ठीक है, 6 मंथ्स के लिए मैं एफडी में रख रहा हूँ, फिक्स डिपॉजिट में रख रहा हूँ। तो मेरे, अगर मुझे इसकी ज़रूरत है, ठीक है, तो वो मुझे कब मिलेंगे, 6 महीने के बाद मिलेंगे, ठीक है। अगर मुझे पहले चाहिए तो मैं मुझे मिल सकते हैं, लेकिन मेरा क्या होगा, लॉस हो सकता है, ठीक है। बैंक को कुछ फाइन वगैरह भरना पड़ेगा मुझे, या फिर जो मेरा इंटरेस्ट होगा वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। दूसरे होते हैं आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। मैं ये हर महीने या फिर हर 3 महीने जैसे भी है वो मैं भरता हूँ, सेम कंसेप्ट है, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर टाइम के बाद मुझे मिलेगा या फिर टाइम के बाद बैंक को देना पड़ेगा उसे कहेंगे टाइम लायबिलिटीज। जो डिमांड करके ही देना पड़ेगा उसे कहेंगे डिमांड लायबिलिटीज, और जो पर्टिकुलर पीरियड के बाद या फिर पर्टिकुलर टाइम के बाद देना पड़ेगा उसे कहेंगे टाइम लायबिलिटीज। तो इसका जो नेट होगा उसके 4%, सपोज ये मान लीजिए कि वो जो टोटल नेट है वो 1,000 CR है, तो 1,000 CR के 4% यानी 40 CR बैंक को क्या है, आरबीआई के पास रखने हैं, आरबीआई के अकाउंट में। अब मतलब आरबीआई में खुद का अकाउंट होगा उस बैंक का, सपोज पंजाब नेशनल बैंक है, तो पंजाब नेशनल बैंक का आरबीआई में अकाउंट होगा, और वो अकाउंट में 40 करोड़ रुपया बैंक आरबीआई को, आरबीआई के अकाउंट मतलब आरबीआई के पास जो पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है वहां पे उसको 40 करोड़ रुपया रखना होगा, ठीक है। ये क्यों है, इमरजेंसी के लिए है, ठीक है। अब इसका और इन्फ्लेशन का क्या संबंध है, ठीक है। सपोज आरबीआई क्या करती है मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर, ये जो सीआरआर है, सीआरआर है, ये पहले तो कितना था, 4% था, तो 40 करोड़ रखने पड़ते थे, ठीक है। अब क्या कर देगी, अगर ये उसने सीआरआर बढ़ाया, तो अगर 6% किया तो कितने रखने पड़ेंगे, 60 करोड़। तो 60 करोड़ जो है मतलब एडिशनल 20 करोड़, ठीक है। तो ये एडिशनल 20 करोड़ बैंक कहाँ से भरेगी, उसके पास की लायबिलिटी से भरेगी। मतलब बैंक को क्या होगा, अब ये जो 20 करोड़ ज्यादा रखने पड़ रहे हैं आरबीआई के साथ, वो क्या होगा, उस वो 20 करोड़ से बैंक क्या करेगी, लोन वगैरह नहीं दे पाएगी आगे किसी को भी, ठीक है। तो लोन कैपेसिटी जो होगा, लोन या फिर लोन गिविंग कैपेसिटी या फिर क्रेडिट, उसको टेक्निकल टर्म में या फिर हम लोग इसके कहेंगे क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी हम लोग उसको कहे, तो वो क्या हो जाएगा, 20 करोड़ से कम हो जाएगा, कैपेसिटी क्या होगा, कम होगा बाय 20 CR, ठीक है। तो 20 CR से मेरा क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हुआ है बैंक का, तो ऊपर हमने देखा था कि जो क्वांटिटेटिव मतलब जो रीजन है डिमांड के, वो क्या है, क्रेडिट क्रिएशन। डिमांड इन्फ्लेशन बढ़ने के या फिर डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ने के रीजन क्या है, क्रेडिट क्रिएशन। तो क्रेडिट क्रिएशन अगर कम होता है तो क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, क्रेडिट क्रिएशन कम होने की वजह से। सो देयरफॉर डिमांड विल बी डिक्लाइन, डिमांड विल बी लो, एंड क्या हो जाएगा, इवेंचुअली इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन कम करना है, ठीक है, अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन कम करना है तो वो क्या करेगी, सीआरआर बढ़ाएगी। और अगर उसके अपोजिट आरबीआई को इन्फ्लेशन मतलब बहुत इन्फ्लेशन कम है, तो आरबीआई क्या करेगी, सीआरआर कम करेगी। यानी जो पहले 4% था उसको, सपोज मान लीजिए 4% था, तो 40 करोड़ रखने पड़ते थे, तो अब उसको कर देगी 3%, ठीक है। तो सिर्फ 30 करोड़ रखने पड़ेंगे, तो ये एडिशनल 10 करोड़ है, वो क्या हो जाएगा, बैंक एडिशनली लोन दे पाएगी। और लोन देने के बाद क्या होगा, ये जो लोन है मतलब लोन क्या होगा, लोन सस्ता हो जाएगा, ठीक है। सो लोन इज चीपर, मतलब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक के पास अभी क्या है, एडिशनल पैसा है ना, तो वो इंटरेस्ट रेट कम करके ज्यादा से ज्यादा लोन देगी। ऊपर क्या होता है, लोन क्या होता है, लोन गेट्स कॉस्टली, ठीक है, लोन जो है वो कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि अब बैंक के पास कम पैसा है, तो जो ज्यादा इंटरेस्ट भरेंगे
उसी को ही बैंक क्या करेगी, लोन देगी। तो मतलब बैंक क्या करेगी, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, क्योंकि प्रॉफिट कम, जो 20 करोड़, जहाँ जिस 20 करोड़ पे प्रॉफिट हो सकता था वो तो कम हो गए, तो उसको प्रॉफिट भी एडजस्ट करना है, तो क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इंटरेस्ट रेट, इतना बढ़ा हुआ इंटरेस्ट रेट, तो वो क्या करेंगे, अपने आप ही लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन होगी है, अगर सीआरआर आरबीआई ने कम कर दिया है, तो ज्यादा लोन, ज्यादा ज्यादा पैसे है बैंक के पास लोन देने के लिए, तो बैंक के पास अगर ज्यादा पैसा है तो बैंक क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट क्या कर देगी, इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट कम कर देगी। जो जिनको पहले पॉसिबल नहीं था इंटरेस्ट रेट पे, जो भी इंटरेस्ट रेट होगा, अगर वो आरबीआई ने कम कर दिया है, तो अब जिनको पॉसिबल होगा वो भी लोन लेंगे, और अगर वो लोन लेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन कम करना है तो आरबीआई क्या करेगी, सीआरआर बढ़ाएगी, अगर बढ़ाना है इन्फ्लेशन तो आरबीआई क्या करेगी, सीआरआर घटाएगी। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं क्या, सीआरआर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन, राइट। सीआरआर इज इन्फ्लेशन, और सीआरआर और इन्फ्लेशन में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, ये मैंने डिटेल में इसके लिए बताया क्योंकि आगे जो कंसेप्ट आने वाली है वो भी इससे बिल्कुल सिमिलर जाती है। ठीक है, तो फिर बाद में ये फिर से मैं दोहराऊंगा नहीं, चाहिए तो आप 1 मिनट, 1 मिनट के लिए पढ़ लो, कुछ डाउट है। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लीजिए 1 मिनट में। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो सीआरआर क्या है, कैपिटल रिजर्व रेशो, सॉरी नॉट कैपिटल, इट इज कैश रिजर्व रेशो, एक्सट्रीमली सॉरी, कैश रिजर्व रेशो है, नॉट कैपिटल, कैश, कैश रिजर्व रेशो है। ठीक है, कैश रिजर्व रेशो, तो बैंक को, ठीक है, सो बैंक्स हैव टू डिपॉजिट द अमाउंट इन परसेंटेज, ये इंपॉर्टेंट है, ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज विथ आरबीआई इन टर्म्स ऑफ कैश। ठीक है, तो ये आरबीआई के साथ पास रखना है, और कैश और फिर करेंसी में रखना है, रुपयों में रखना है। ठीक है, तो ये है, हमने डिमांड और टाइम लायबिलिटी क्या है, मतलब डिफरेंस देखा। ठीक है, और सीआरआर बढ़ने का इम्पैक्ट देखा, सीआरआर घटने का भी इम्पैक्ट हमने देखा, तो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि सीआरआर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन। ठीक है, तो अगर आरबीआई क्या करेगी, अगर आरबीआई सीआरआर बढ़ा रही है तो इन्फ्लेशन कम होगा, तो रुपी का जो वैल्यू होगा, ठीक है, तो उसे हम लोग कहेंगे डियर मनी पॉलिसी। अगर इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ा रही है तो वो होगा डियर मनी पॉलिसी। ठीक है, ठीक है, इफ सीआरआर इज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगी, डियर मनी पॉलिसी लाएगी, मतलब इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई क्या होगा, डियर मनी पॉलिसी। अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन बढ़ाना है तो उस पॉलिसी को कहेंगे चीप मनी पॉलिसी, क्या कहेंगे, चीप मनी पॉलिसी। ठीक है, इन सो यहाँ पे क्या होता है, सीआरआर जो है वो कम होता है, तो मनी, ओके, राइट। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट होगा एसएलआर, एसएलआर, या फिर स्टैचूटरी, स्टैचूटरी लिक्विडिटी रेशो, स्टैचूटरी लिक्विडिटी रेशो, एसएलआर। ओके, स्टैचूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो ये बिल्कुल सीआरआर के जैसे ही है, सिर्फ इसमें दो डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम लोग देखते हैं। जैसे जो ये एक तो ये स्टैचूटरी है, ठीक है, लिक्विडिटी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी है, यानी इट इज नॉट कंपल्सरी टू मेंटेन दिस इन टर्म्स ऑफ करेंसी ओनली और इन टर्म्स ऑफ कैश ओनली। ये हम ये जो बैंक्स होती है, ये दे कैन पुट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी,
फॉर्म ऑफ कैश, कैश में भी रख सकती है, और गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज वगैरह जो होती है उसमें भी रख सकती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और गोल्ड में रख सकती है, ठीक है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री, ठीक है, ये किस में भी वो रख सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, अगर मतलब जो सीआरआर है वो क्या रखना पड़ता है, वो बैंक आरबीआई, बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, ठीक है, और ये जो है बैंक कैन डिपॉजिट, so they can put SLR with themselves, they put SLR with themselves, मतलब वो जो SLR होगा वो उनके पास ही उनको रखना पड़ेगा, मतलब ठीक है, वो उनके पास ही उनको रखना पड़ेगा, मतलब ये आरबीआई के पास रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई अगर इमरजेंसी आ जाती है तो वो एसएलआर से वो पैसा निकाल सकते हैं। सेम होगा अगर एसएलआर का रेट जो है फिलहाल अप्रोक्सीमेटली 18% के अप्रोक्सीमेटली है उसका रेट एट प्रेजेंट, तो अगर एसएलआर बढ़ाया तो इन्फ्लेशन जो होगा वो घटेगा, सेम जैसे सीआरआर के साथ होता है वैसा ही एग्जैक्टली सेम इम्पैक्ट एसएलआर के साथ भी होगा। एसएलआर बढ़ाया तो इन्फ्लेशन कम होगा, एसएलआर घटाया तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। सो एसएलआर सेम एज सीआरआर विद इन्फ्लेशन, ठीक है, सेम एज सीआरआर, बाकी ये सिर्फ ये दोनों डिफरेंस है उसके, ओके। नेक्स्ट है बैंक रेट। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है या फिर टूल है बैंक रेट, थर्ड वन। इट इज द रेट एट विच RBI gives loan to banks. RBI gives loan, loan to bank, ठीक है। So at present it is approximately 4.5%, ठीक है। So यहाँ पे क्या होता है, बैंकों को अगर किसी काम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, या फिर लिक्विडिटी का क्रंच है उसको कम करने के लिए क्या है, लोन की अगर जरूरत पड़ती है तो वो क्या करती है, बैंक जो क्या करती है वो टाइम टू टाइम आरबीआई से लोन ले लेती है, ठीक है। अगर बैंक ने अगर मतलब आरबीआई ने, अगर मान लीजिए कि आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ाया तो क्या होगा, ठीक है, इस बैंक रेट जो है आरबीआई ने अगर बढ़ाया तो बैंक ने, सपोज पीएनबी बैंक है, पीएनबी बैंक ने 80 करोड़ रुपए का लोन लिया है आरबीआई से, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट था, सपोज फॉर कैलकुलेशन पर्पज के लिए हम लोग इसको लेते हैं, चलो हम लोग इजी करते हैं, और तो आरबीआई ने पीएनबी ने लिए 100 करोड़ रुपए बैंक से, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट रेट जो था वो था सपोज 4%, 4% इंटरेस्ट रेट था, तो आरबीआई को कितने पीएनबी को कितने देने हैं आरबीआई को 104 रुपया, ठीक है। अगर बैंक ने 4% इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, 4% बैंक रेट पे, तो अगर आरबीआई ने ये 5% कर दिया, ठीक है, 5% आरबीआई ने बढ़ा दिया, तो कितने देने हैं 105 करोड़, ठीक है। तो ये 105 करोड़ जो है वो एडिशनल 1 करोड़ है, ये क्या हो जाएगा, फिर पीएनबी का 1 करोड़ कम हो जाएगा, किसमें से, जो वो लोन, जिस अमाउंट का वो लोन दे सकती है उसमें से, तो फिर से क्या होगा, लोन का जो वैल्यू होगा, लोन वैल्यू वो बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, घटेगा, ठीक है, सेम। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, बैंक रेट बढ़ा तो इन्फ्लेशन घटा, बैंक रेट बढ़ा तो इन्फ्लेशन घटा, ठीक है। तो ये जो है इसे इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, ठीक है। जो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सिर्फ दो ही थे, सीआरआर और एसएलआर, ये डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स थे, सीआरआर, सीआरआर
और SLR, ये दोनों डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स थे, CRR और SLR। अब क्यों डायरेक्ट, क्योंकि वहां पे अगर कम ज्यादा होता है CRR और SLR, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे होता है। लेकिन बैंक रेट का वगैरह अगर हम लोग देखें तो इन्फ्लेशन पे इतना इम्पैक्ट होने के चांसेस मतलब हमेशा नहीं होते। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर बैंक रेट RBI ने कम कर दिया, सो इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर बैंक्स टू रिड्यूस देयर ओन इंटरेस्ट रेट। मतलब बैंक ने अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है, सॉरी RBI ने अगर बैंक रेट कम कर दिया है, तो ये जरूरी नहीं है कि बैंक वो जो बैंक रेट कम हुआ हुआ बैंक रेट है वो लोगों को या उसके कस्टमर को हैंड ओवर करे। ठीक है, तो प्रॉफिट ज्यादा कमाने के लिए बैंक क्या करेगी, अपने इंटरेस्ट रेट जो है वो जैसे थे वैसे ही रखेंगी, स्टेटस को मेंटेन करेगी बैंक, मतलब ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो जो एक्चुअली पर्पस था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना वो होगा नहीं, तो इसके लिए इसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट, मतलब बैंक्स हैव टू एक्ट ऑन दिस। ठीक है, डायरेक्ट में क्या होगा, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होगा इन्फ्लेशन में। ठीक है, बैंक के पास ये अलाउ, ये बैंक को ये अथॉरिटी है, बैंक जो है नॉर्मल बैंक PNB वगैरह जैसी, उनके पास ये ऑटोनॉमी है कि इसका जो बेनिफिट होगा वो कस्टमर को पास ऑन करना है कि नहीं करना है। ठीक है, लेकिन CRR और SLR क्या है, वो उनको मैंडेटरी करना ही है, इट इज इन देयर मैंडेट टू फॉलो द CRR एंड SLR रूल। ठीक है, तो ये है डिफरेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट इससे रिलेटेड है रेपो रेट, ये भी इनडायरेक्ट है। रेपो रेट, रेपो रेट, रेपो का मतलब है रीपर्चेसिंग ऑब्लिगेशन, रीपर्चेसिंग ऑब्लिगेशन। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं, रेट एट विच, इट इज अ रेट एट विच, rate at which RBI gives, RBI gives emergency loan, emergency loans to banks। ठीक है, ये नॉर्मल है, मतलब बैंक ऊपर का जो ऊपर के केस में बैंक रेट में नॉर्मल लोन है, ये इमरजेंसी लोन है फॉर 1 डे टू 56 डे। ठीक है, एक दिन से 56 दिन तक ये लोन दे सकती है। ठीक है, 1 डे टू 56 डेज तक ये हो सकता है। ओके, अगर रेपो रेट जो है मतलब रीपर्चेसिंग ऑब्लिगेशन, अगर मतलब क्या है इसका कि RBI जो है वो बैंक को रीपर्चेसिंग ऑब्लिगेशन देती है कि हम लोग ये फिर से लेंगे, फिर से परचेस करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे देता है, इमरजेंसी लोन्स कैसे होता है कि बैंक जो है वो गवर्नमेंट की जो मतलब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी वगैरह है वो बेचती है। ठीक है, क्यों, पैसा जो है वो कम करने के लिए। ठीक है, दूसरा उसके अपोजिट होता है रिवर्स रेपो या फिर रिवर्स रेपो या फिर रिवर्स रिपर्चेसिंग ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो ये क्या है, एग्जैक्टली अपोजिट है। ठीक है, रेट एट विच, रिवर्स रेपो, रेट एट विच, रेट एट विच RBI सेल्स, RBI सेल्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, कमर्शियल पेपर्स वगैरह, कमर्शियल पेपर्स टू बैंक्स। ठीक है, तो अगर रिपो में क्या होता है, RBI बैंकों को पैसा देती है तो बैंक के पास पैसा बढ़ेगा। ठीक है, अगर रेपो रेट कम ज्यादा हो रहा है तो उसका इफेक्ट ये होगा। अगर रिवर्स रेपो रेट है, मतलब क्या हो रहा है, RBI क्या कर रही है, RBI सेल करती है, मतलब
आरबीआई बैंकों के पास जो पैसा है, बैंक्स के पास जो पैसा है वो सब कर लेती है, ठीक है। जो कमर्शियल पेपर वगैरह जो है, जो मतलब ये क्या है, इसमें गवर्नमेंट का अथॉरिटी है, इसके लिए हमेशा इस पे प्रॉफिट मिलेगा ही, तो बैंक क्या करेगी, वो ले लेगी, ठीक है। तो क्या होगा, मार्केट में से पैसा जो होगा वो कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, ठीक है। इसका अपोजिट रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, बैंक क्या करेगी, लोन देगी, ठीक है, ज्यादा मतलब बैंक क्या करेगी, लोन देगी इसको, किसको, इमरजेंसी लोन देगी बैंक्स को, ठीक है। आरबीआई क्या कर रही है, बैंकों को इमरजेंसी लोन दे रही है, ठीक है। तो अगर इसका रेट बढ़ा तो इन्फ्लेशन पे भी असर होगा, अगर इसका भी रेट कम ज्यादा हुआ तो इन्फ्लेशन पे भी असर होगा, ठीक है। तो इस दोनों को, मतलब रेपो एंड रिवर्स रेपो, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है, LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन, ओके। तो आरबीआई इस तरह से क्या करती है, ये जो टूल्स है वेरियस उसके पास, वो क्या कर सकती है आरबीआई, जो है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है, ठीक है, राइट। चलो, तो यहाँ पे हमारा जो कंसेप्चुअल पार्ट था, यहाँ पे मतलब जो लेना था वो खत्म हो गया है। रेस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स आर देयर मेंशन्ड इन योर नोटबुक, नॉट नॉट मतलब नोटबुक नहीं, जो आपके जो नोट्स हैं। यस, हु वांट्स टू स्पीक, प्लीज। हेलो हाँ, बोला। सर, एक्चुअली जो अबाउट जो आपने अभी एक्सप्लेन किया ना, वो हम्म। क्विक हमें बता सकते हो सो दैट वी कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ईच स्लाइड. Actually, I've been listening, so I just wanted to note that down. So अच्छा that's the अच्छा, ओ reason. श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, आई विल जस्ट, Yeah, thank you. ओके। कहाँ से, दिस दिस ओके, सीआरआर से, Starting. ओके, सीआरआर, ओके, राइट, ठीक है। मैं धीरे धीरे नीचे करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है, ओके। मतलब ये जो आप, मतलब यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, बट ऑल दिस थिंग्स इज अवेलेबल विद आर्या मैम, मैंने पहले ही वो सेंड कर दिए है मैडम को, तो आप उनसे डायरेक्टली ये नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसके लिए मैंने वो यहाँ पे मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, नो प्रॉब्लम। स्पीड बताना, कम ज्यादा करना है। ओके, सो देखते हैं सम वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम करंट अफेयर्स। अब बेसिकली ये जो एस्पेक्ट है करंट अफेयर्स का, वहाँ पे कैसे कैसे सवाल आते हैं, ये तो हमने पहले लेक्चर में देखा था।
ठीक है, तो मैं फिर से वो दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि टू जस्ट डुप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है करंट अफेयर्स की, उसको मैं यहाँ पे जस्ट मेंशन करता हूँ। कुछ चीज़ें मैं उसकी मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, हम लोग आज जो है वो अवार्ड्स एंड स्पोर्ट न्यूज़, ठीक है, अब हम लोग जो है आज अवार्ड, ठीक है, अवार्ड्स एंड डिफेंस न्यूज़ पे हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, अवार्ड्स एंड बुक्स एंड डिफेंस न्यूज़, इन तीनों चीज़ों पे हम लोग आज फोकस करेंगे। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, अवार्ड्स एंड डिफेंस न्यूज़ के साथ साथ हम लोग जो इम्पोर्टेंट डेज हैं लास्ट मंथ में, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्लस इम्पोर्टेंट डेज, ये हम लोग चीज़ें फोकस करते हैं। राइट, जस्ट अ मिनट। चलो पहले देखते हैं इम्पोर्टेंट डेज में। और इम्पोर्टेंट डेज, उसमें पहला 1 जनवरी, जनवरी 2022, एस्टेब्लिशमेंट डे ऑफ डीआरडीओ। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट डे ऑफ डीआरडीओ। अब डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डीआरडीओ, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ओके, 1958, 1958 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, 1958 में। तो आपका होमवर्क क्या है? ठीक है, आपका होमवर्क है, ये तो मैं मैडम को भेज रहा हूँ, आपका होमवर्क है चीफ ऑफ डीआरडीओ, डीआरडीओ के चीफ कौन है? ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है, और उसका हेडक्वार्टर ऑफ डीआरडीओ, ये भी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैंने बताया था पहले, स्पून फीडिंग नहीं होगा बिल्कुल भी, आपको खुद को भी मेहनत करनी है। चीफ ऑफ डीआरडीओ कौन है? अब उसके ये कौन है, क्या कहते हैं उसको, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है 4 जनवरी, ये है वर्ल्ड ब्रेल डे, वर्ल्ड ब्रेल, ब्रेल, ब्रेल डे। ठीक है, ब्रेल ये जो है, ये है एक प्रकार का जो हम लोग कहते हैं ना, स्क्रिप्ट है। ठीक है, जो ब्लाइंड पर्सन है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ब्लाइंड पर्सन इसको इस्तेमाल करता है, ये जो स्क्रिप्ट है। इसकी जो शुरुआत हुई थी, इस डे को मनाने की जो शुरुआत हुई थी, वो थी 2019 से, ये स्टार्ट हुआ था 2019। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था लुई ब्रेल, इन्होंने इनका जन्मदिन होता है 4 जनवरी। लुई ब्रेल, लुई ब्रेल जो जिन्होंने ये ब्रेल लिपि का, या फिर जो ब्रेल स्क्रिप्ट है,
इसका आविष्कार किया था लुई ब्रेल। इनका जन्मदिन होता है 4 जनवरी। ठीक है, आपका होमवर्क है थीम ऑफ दिस ईयर, थीम ऑफ 2022, ये आपको आपके नोटबुक में ऐड करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, थीम। ठीक है, आप कैसे करोगे? ठीक है, तो मैं एग्जांपल मैं बता देता हूँ। ठीक है, वर्ल्ड ब्रेल डे, इसका मैं एग्जांपल में बता देता हूँ। ओके, ये जो है इसका पर्टिकुलर थीम नहीं है, मतलब हर किसी डे का थीम होता नहीं है, तो आपको ये मतलब यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर थीम नहीं था। ठीक है, मतलब ऐसे कोई इंपॉर्टेंट डेज होंगे जिसका पर्टिकुलर क्या होगा, थीम होगा, ऐसे कंपलसरी नहीं है। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। ओके, नेक्स्ट 10 जनवरी, ये इंपॉर्टेंट मैं ले रहा हूँ, 10th of January, ये वर्ल्ड हिंदी डे है। क्या है? वर्ल्ड हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे। ये जो वर्ल्ड हिंदी डे है, 10 जनवरी को होता है। ये सबसे पहले 2006 में इसको मनाया गया था, या फिर 2006 से हम लोग हर हर साल हम लोग इसको ये दे रहे हैं, वर्ल्ड हिंदी डे। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको क्या है, आपका होमवर्क है कि आपको इसका थीम ढूंढना है। इसका थीम है थीम ऑफ 2022, आपको ये ढूंढना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेज। 24th January, 24th January, वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। ये है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, ये 24 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। क्यों करते हैं? ठीक है, टू सेलिब्रेट द रोल ऑफ एजुकेशन इन ब्रिंगिंग द ग्लोबल पीस, मतलब जो जागतिक शांतता है, ग्लोबल पीस है, उसको पाने के लिए एजुकेशन का जो रोल है, वो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एजुकेशन डे मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। ओके, इसका इस साल का थीम था, यहाँ पे मैं बता देता हूँ थीम, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, थीम है इसका इस साल का, चेंजिंग कोर्स, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हो गए। फिर उसके बाद उसके बाद है 27 जनवरी, 27 जनवरी, यह है इंटरनेशनल डे, इंटरनेशनल डे
of commemoration in memory of victims of the Holocaust, या फिर इसे इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे भी कहा जाता है। इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे, ठीक है। जो हॉलोकॉस्ट हुआ था, मतलब जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो जू हॉलोकॉस्ट हुआ था, नाजी जर्मन नाजी के जरिए या फिर उनके थ्रू, या फिर उन्होंने जो जूज लोगों का हॉलोकॉस्ट किया था, जिनोसाइड किया था, उसके लिए और ये किया जाता है, ठीक है। सो इसका थीम था 2022 का, या फिर जो हॉलोकॉस्ट जो भी हॉलोकॉस्ट हुआ है, जिनोसाइड हुआ है, उसके रिमेम्बरेंस के लिए इसका थीम था मेमोरी, डिग्निटी, जस्टिस। ये इसका थीम था 2022 का, ठीक है। ओके, लास्ट वन डेज में, मतलब वर्ल्ड लेप्रेसी डे। वर्ल्ड लेप्रेसी यानी जो कुष्ठ रोग होता है, ये एक बैक्टीरियल डिसीज है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी डे, वर्ल्ड लेप्रेसी डे, ये 30 जनवरी को मना ऑब्जर्व किया जाता है, 30 जनवरी को, ठीक है। लेप्रेसी डे मतलब जो लेप्रेसी से अफेक्टेड लोग हैं, ये एक लेप्रेसी का है, एक बैक्टीरियल डिसीज है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नाम के बैक्टीरिया से ये होता है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, आपके जो हाथ पैर के जो उंगलियां होती है वो झड़ जाती है धीरे धीरे, ठीक है। आपका जो स्किन होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, वो डिफंक्ट होने लगता है, ठीक है। तो ये है, तो लेकिन ये कंटीजियस नहीं है, मतलब ये फैलता नहीं है टच से वगैरह, ठीक है। तो उसके लिए एक अवेयरनेस वगैरह क्रिएट करने के लिए वर्ल्ड लेप्रेसी डे किया जाता है। महाराष्ट्र में या फिर पूरे भारत में जो बाबा आमटे थे, मुरलीधर आमटे, उनका बहुत बड़ा काम था इसके लिए, ठीक है। तो इस साल का इसका थीम था यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, राइट, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, ओके। तो ये है इंपॉर्टेंट डेज जनवरी के मैंने देखे हैं। ऐसे ही आपको, तो आपको क्वेश्चंस किस प्रकार के आएंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने जनवरी के डे लिए थे, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन डेज। आप लोग कल भी ये देखेंगे पेपर में, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। दो टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, 2 से 3 टाइप के। पहला तो है डायरेक्ट डे पूछेंगे, आपको पूछेंगे कि वर्ल्ड लेप्रेसी डे कब होता है, ठीक है। सो एग्जैक्ट डे एंड, ठीक है, एग्जैक्ट डे पूछेंगे, एग्जैक्ट डे। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड इंटरनेशनल एजुकेशन, ठीक है, एग्जैक्ट डे पूछ लिया, और थीम ऑफ द करंट ईयर, ठीक है, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। मतलब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मतलब आजकल ऐसे हो रहा है, स्टाफ सिलेक्शन की एग्जाम हो, रेलवे की एग्जाम हो, बैंक की भी एग्जाम हो, वो सिर्फ उस साल का करंट अफेयर नहीं पूछ रहे हैं, मतलब स्पेशली डेज के वगैरह बारे में। अगर आप 2022 में आप अपेयर कर रहे हो मेंस एग्जाम, तो आपको 2022 का थीम पता होना कंपलसरी है, लेकिन ये अच्छा होगा, इट इज एडवाइजेबल टू नो द थीम ऑफ 2021 ऑल्सो, ठीक है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्योंकि क्या हो रहा है, एक आप बात समझ लीजिए कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो 2022 का थीम तो सबको मालूम होगा, ठीक है, लेकिन
तो हम सबको तो जॉब दे नहीं सकते, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अब जो क्वेश्चन है वो ज्यादा डेप्थ में पूछे जाने वाले हैं। जो इतना डेप्थ में जाके पढ़ेगा, इतना सोच के पढ़ेगा, वही आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो आपसे मेरी ये विनती है, जिसमें हम्बल रिक्वेस्ट, कि जो भी हम लोग अभी डेज देखे हैं, या फिर आपके जो आपका जो स्टैटिक का जो नोटबुक है, या फिर करंट अफेयर की आप जब तैयारी करोगे, तब जो अलग अलग आपको जो दिन अलग अलग आपको जो डेज मिलेंगे, तो उसकी 2022 की तो थीम आपको करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी गिवन इन योर मैगजीन, आइदर क्लासेस मैगजीन और एनी अदर मैगजीन दैट यू आर रेफरिंग। बट आपको एडिशनली क्या करना है, 2021 की भी थीम आपको वहां पे लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी जो लिखे थे, जो डेज थे, तो वर्ल्ड एप्रेसी डे की थीम थी 2022 की यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, ठीक है, ये 2022 की थी। तो 2000 आपका होमवर्क क्या होगा, 2021 की थीम भी आपको पता करनी है, ठीक है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखते हैं जो मैंने ऊपर बताया था, कौन से न्यूज देखने वाले हम लोग, अवार्ड्स, राइट, अवार्ड देखने वाले हैं हम लोग। जस्ट अ मिनट, अवार्ड्स। ओके, सो अवार्ड्स में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं देखते हैं। पहले कुछ न्यूज देखते हैं अवार्ड से रिलेटेड, फिर आपको मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, ऐसे हम लोग उसको कह सकते हैं। यस, नीरज चोपड़ा पहला अवार्ड है, इंपॉर्टेंट, नीरज चोपड़ा। आप सभी को पता होगा कि नीरज चोपड़ा कौन है, ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट है। उसने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल मिला था उसको लास्ट ईयर के ओलंपिक में। तो उसे 2022 का लॉरेस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। कौन सा है, लॉरेस लॉरेस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, ठीक है। तो आपको इस न्यूज पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है, यहाँ यहीं पे मैं बता देता हूँ कि आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि 2022 का लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू अवार्ड किसको मिला, ठीक है। सो डायरेक्टली नेम आपको पूछेंगे, डायरेक्ट नेम, ठीक है। वो मे बी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी होगा, स्पोर्ट्स अवार्ड होगा, लिटरेचर बेस्ड अवार्ड होगा, साइंस बेस्ड अवार्ड होगा, सोशल वर्क बेस्ड अवार्ड होगा, कोई भी अवार्ड होने दो, ठीक है, ठीक है। तो वो आपको पूछेंगे, या फिर आपको ये पूछ लेंगे कि जिसको वो अवार्ड मिला है, सो फॉर एग्जांपल नीरज चोपड़ा वाज अवार्डेड विद द वर्ल्ड लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू अवार्ड ऑफ द ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 इन, सो टू विच फील्ड ही बिलोंग्स। तो वो आपको ये पूछ लेंगे कि वो किस फील्ड से बिलोंग है। तो आपको स्पोर्ट्समैन देंगे, एंकर देंगे, ऐसे कुछ अलग अलग आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है। तो फील्ड ऑफ द अवार्डी ऐसे भी आपको पता होना चाहिए, फील्ड और उसका जो एजुकेशन है, बैकग्राउंड है, जो कुछ होगा उसका, वो भी आपको पता होना चाहिए, बैकग्राउंड ऑफ द अवार्डी, जिसको अवार्ड मिला है उसका, ठीक है। ये दो टाइप के क्वेश्चंस आपको अवार्ड पे बनते हैं, ठीक है। अवार्ड में आपको कौन से अवार्ड करने हैं, इसकी लिस्ट वगैरह जो है आपके नोट्स में है, जो स्टैटिक अवेयरनेस की जो नोट्स है वहां पे आपको दी गई है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट अवार्ड, अगर देखिएगा आप तो अकुला संदीप, अकुला संदीप, ये एक तमिलनाडु का लड़का है, ठीक है, मतलब एक तमिलनाडु का पर्सन है। तो यहाँ पे इसे
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक ह्यूमन राइट्स कमीशन ने क्या किया था, एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज की थी। तो आपको मतलब किसके लिए, टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द ह्यूमन राइट्स, ठीक है। एनएचआरसी ने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज की थी, तो उसमें उसको फर्स्ट प्राइज मिला, अंकुला संदीप को, ठीक है। तो उसका बुक था, फिर जो उसकी जो शॉर्ट फिल्म थी जिसने वो बनाया था, वो था स्ट्रीट स्टूडेंट। स्ट्रीट स्टूडेंट जो स्टूडेंट है जो स्ट्रीट पे रह के अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, उनके बारे में थी। तो आपको ये कैसा अवार्ड है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे कि ये इसका शॉर्ट फिल्म का नाम था, शॉर्ट फिल्म नेम। तो शॉर्ट फिल्म का नाम भी पूछेंगे थोड़ा, अगर और उनको डिफिकल्ट करना है तो, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग चीजें आपको पूछेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो लिस्ट है इम्पोर्टेंट अवार्ड्स की आपके नोट्स में दी गई है, तो प्लीज गो थ्रू दैट नोट्स, ठीक है। ये हम लोग वर्ल्ड मतलब दिन के देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड है बिल गेट्स, ओके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड है हिलाल ए पाकिस्तान, ठीक है। हिलाल ए पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, हिलाल ए पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। तो ये इस बार मिला था 2022 में बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ वगैरह रह चुके हैं, उनको ये अवार्ड मिला था। किसके लिए, टू इरेडिकेट, इरेडिकेट यानी क्या करना, नाश करना, नष्ट करना, इरेडिकेट ऑफ पोलियो इन पोलियो पोलियो इन पाकिस्तान। पाकिस्तान से पोलियो का इरेडिकेशन करने के लिए इनको जो इनकी फाउंडेशन थी, बिल एंड मिलेंडा गेट्स फाउंडेशन, तो उसने बहुत काम किया था, तो उसको बिल गेट्स जी को क्या मिला था, हिलाल पाकिस्तान अवार्ड मिला था। तो आपको यहाँ पे ये भी पूछ लेंगे कि हिलाल पाकिस्तान अवार्ड किसको मिला था या फिर किस काम के लिए मिला था, ये भी आपको पूछ लेंगे, ठीक है। ओके, दूसरा एक इम्पोर्टेंट अवार्ड है कि जो गवर्नमेंट का एक एसोचैम, एसोचैम ASSO, ASSO CHAM, एसोचैम जो है वो क्या है, एक इंडस्ट्री की एक लॉबी है, इंडस्ट्री का एक बॉडी है, इंडस्ट्री बॉडी। वो लॉबी काम करते हैं, मतलब जो इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल वगैरह होगा ऐसी पॉलिसीज को गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो प्रेशराइज करते हैं, गवर्नमेंट को परस्यू करते हैं, गवर्नमेंट को अलग अलग पॉलिसीज में गाइडलाइंस देते हैं, डायरेक्शंस बताते हैं, ऐसे वो बहुत सारे काम करते हैं। तो इन्होंने एक अवार्ड दिया था, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक कंपनी, ठीक है, पब्लिक सेक्टर कंपनी, इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी, ठीक है। तो ये जो अवार्ड है ये मिला था कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये एक महारत्ना कंपनी है, ठीक है, महारत्ना। अब महारत्ना ये जो स्टेटस है ये गवर्नमेंट देता है, उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ये आपको मतलब इतने नहीं पूछेंगे, ये कि एक महारत्ना कंपनी है तो उसको मिला था। तो आपका होमवर्क क्या हो गया, आपको डायरेक्टली तो पूछेंगे ये सवाल कि किसको मिला, तो आपका होमवर्क है जो CIL है यानी कोल इंडिया लिमिटेड है, इसको आपको हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो आपको पता करना है। इसके हेड जो भी है, मतलब MD, CEO, सॉरी, CEO ऑफ CIL, ठीक है, ये कौन है ये भी आपको पता करना है। उसी के साथ आपको एसोचैम जो है उसका हेडक्वार्टर
एसोचैम का हेडक्वार्टर और हेड, एसोचैम के हेड या फिर एमडी वगैरह जो है वो भी आपको पता करने हैं। ये क्या है आपका होमवर्क है। ठीक है, सवाल करंट अफेयर का न्यूज क्या है। सीआई को, कोल इंडिया लिमिटेड को ये अवार्ड मिला है। कोल इंडिया लिमिटेड को क्या मिला है, ये अवार्ड मिला है। ओके, कोल इंडिया लिमिटेड को ये अवार्ड मिला है। करंट अफेयर का न्यूज है ये, लेकिन उसमें बेसिक कैसे करना है। करंट अफेयर का उसको कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ पे है, उसके सीईओ का नाम क्या है वगैरह, या फिर जो अवार्ड जिसने दिया था एसोचैम, उस एसोचैम ऑर्गेनाइजेशन के हेड का नाम क्या है और उसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ऐसा भी उसको पूछा जा सकता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो आपको मैंने बताया था कि बुक्स के बारे में। ठीक है, बुक्स, राइट, बुक्स है ना। बुक्स, ये कुछ मतलब इंपॉर्टेंट, मैं हेडिंग सिर्फ ले रहा हूँ, बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स। ठीक है, तो इसमें आपको कैसे पूछे जाते हैं सवाल, बुक्स एंड ऑथर्स। आपको बुक का नाम देंगे, बुक का नाम आपको दिया जाएगा, बुक्स नेम विल बी गिवन एंड दे विल आस्क यू टू आइडेंटिफाई द ऑथर एंड आस्क टू आइडेंटिफाई द ऑथर, आंसर द ऑथर, नेम ऑफ द ऑथर। ऐसे ही सवाल आपको पूछा जाएगा। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लास्ट 5-6 साल में, सॉरी 5-6 ईयर में, 5-6 मंथ में। ओके, तो ये देखिए पहला ही इंपॉर्टेंट है। ओके, उंगाली, उंगालिल उरुवन, उंगालिल, उंगालिल उरुवन या उरुवन, ये जो है, और वन अमंग यू, इसका मतलब है वन अमंग यू। अब ये जो बुक है, ये तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है, तमिलनाडु के, तमिलनाडु सीएम एम के स्टैलिन। तो हमें क्या पता चला है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है, एम के स्टैलिन। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एम के स्टैलिन। ओके, एम के स्टैलिन है ये, इसके चीफ मिनिस्टर है। और ये है इनका क्या है, ऑटोबायोग्राफी। ये है ऑटोबायोग्राफी, यानी आत्मचरित्र, ऑटोबायोग्राफी ऑफ तमिलनाडु सीएम एम के स्टैलिन। तो इस बुक का जो प्रकाशन था, या फिर जो जो जिसका लॉन्चिंग था, वो राहुल गांधी जी ने किया था, लॉन्च्ड बाय राहुल गांधी। ठीक है, तो ये आपको मतलब ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा पूछना, लेकिन राहुल गांधी, तो ये डेफिनेटली आपको पूछा जा सकता है कि ये उनके ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, या फिर ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है, ऐसे भी इसको पूछा जाएगा। ठीक है, ये है। तो आपका एडिशनल होमवर्क क्या है यहाँ पे, आपको तो अब आपको पता चला कि तमिलनाडु के सीएम कौन है। ठीक है, तो आपका होमवर्क है तमिलनाडु का कैपिटल, आपको शायद से पता होगा, नहीं पता है तो देख लीजिएगा, तमिलनाडु कैपिटल एंड तमिलनाडु गवर्नर। ओके, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गीतांजलि श्री। ठीक है, इनको अवार्ड मिला था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है, इनको अवार्ड मिला था इंटरनेशनल बुकर प्राइज का। ये अवार्ड में भी हम लोग ले सकते हैं गीतांजलि श्री, ये ऑथर थी। ठीक है, गीतांजलि श्री, इनको ये मिला था, उनका बुक का नाम था टूम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, ये मतलब
अवार्ड नहीं मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज में फाइनलिस्ट में आ गए थे। क्या आ गए थे? फाइनलिस्ट, फाइनलिस्ट, ठीक है। टूम्ब ऑफ सैंड, ये हिंदी बुक का ट्रांसलेशन है, टूम्ब ऑफ सैंड या फिर रेत समाधि, इसे हिंदी में पब्लिश हुआ था, रेत समाधि। तो आपको क्या पूछेंगे, रेत समाधि ये किसका बुक है? तो वो गीतांजलि श्री का है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, वो उसमें फाइनलिस्ट में आया था, ठीक है। ओके, सो ऐसे बहुत सारे बुक्स वगैरह जो है पिछले 6 महीने के आपकी जो एग्जाम है, सो 6 मंथ्स इंपॉर्टेंट बुक्स, 6 मंथ्स इंपॉर्टेंट बुक्स, उसके साथ आपको जो अवार्ड मिला है, जैसे कि हमने अभी देखा, जो अवार्ड मिला है, अवार्ड अगर बुक से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड अवार्ड है, तो अवार्ड जिस बुक को मिला है, अवार्ड, बुक एंड ऑथर, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल 2000 अगर 2021 में हम लोग देखें, तो शनि बेग नाम के एक बुक था, उसके ऑथर को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था, ठीक है। तो ये पूछ लिया था कि बुक का नाम क्या है, ठीक है। तो ऐसे ये अवार्ड के बारे में भी पूछ सकते हैं और बुक के बारे में भी पूछ सकते हैं, या फिर सिर्फ इनका आपको देंगे कि ये बुक किसका है या फिर इसके ऑथर कौन है, ऐसे डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा, ठीक है। नाउ इट्स ऑलमोस्ट 12:36, 9:36, so we will stop here for today and we will continue this current affairs uh, news, current affair news from tomorrow, ठीक है।